students, once again we are in this online class today now, and today the class is for standard 10, and today's topic is our environment. We shall study the topic our environment. Now we can see this chapter, and this is very important topic for you, and in your syllabus also the chapter has been mentioned that you have to study chapter 13, our environment. So what is the topic environment? First of all, you have to know that environment. What is environment? You have may mostly listen to the word environment. This is very common word. In Hindi we call it Paryavaran, if we can say. So what is our relation with our environment? That we read in this chapter. And what are the factors that affect our relationship with our environment? So first of all, we have to know the name of the scientist who has coined the term. He was A.G. Tansley. In 1935, he coined the term ecosystem. So ecosystem is that branch of biology or ecology. Ecosystem we study in ecology, the branch of biology in which we study about ecosystem, that is called ecology. तो इको मीन्स एनवायरनमेंट है और लोगोस मीन्स टू स्टडी होता है. तो इकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी दैट डील्स विद दैट different types of ecosystem, the detailed structures of ecosystem, detailed functions of ecosystems. So the term ecosystem was first coined by A.G. Tansley in 1935. So you can see that we have what we have to read. Ecosystem आपको पढ़ना है जिसमें कंपोनेंट्स पढ़ने हैं. इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट होते हैं. तो किसी भी इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होंगे. हमेशा आपको याद रखना है, एक बायोटिक कंपोनेंट होते हैं और दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट होता है. बायोटिक कंपोनेंट किसी भी इकोसिस्टम की अगर बात करें तो उसके लिविंग कंपोनेंट्स को हम लोग बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं और उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट, उसके इन्वायरमेंट को हम लोग, जिसमें कि टेम्परेचर हो, विंड हो, रेनफॉल हो, that also affects the population of a species, that is called the abiotic ecosystem. लाइट है, विंड है, विंड आपको लिख दिया है, रेनफॉल हो गया, टेम्परेचर है, लाइट है, एक्सेट्रा. तो these are the different things that comprise of abiotic system. So the interacting organism, तो एक ऐसा सिस्टम है ये इकोसिस्टम जिसमें ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ. ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, किसी भी पार्टिकुलर एरिया की अगर हम बात करें, अगर किसी पॉन्ड की बात करें तो पॉन्ड में कौन लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कौन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वहां पे. तो इस चीज को, उसकी एक अपनी इकोसिस्टम है. ग्रासलैंड की अपनी इकोसिस्टम होती है. तो इस तरह से इकोसिस्टम में दो चीजें होंगी, एक बायोटिक कंपोनेंट होंगे, एक एबायोटिक कंपोनेंट होंगे. एबायोटिक, तो ecosystem consists of two components. How many components? Two components हैं, biotic और abiotic component. All the interacting organisms in an area together with non-living constituents of the environment. मीन्स कि लाइट हो, टेम्परेचर हो, विंड हो, वाटर हो, इसको हम लिविंग कंपोनेंट, लिविंग कंस्टिट्यूएंट तो नहीं कर रहे, बट नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ द एनवायरमेंट, एंड दैट अफेक्ट्स आवर लाइफ. So we are really interacting with the environment through these abiotic components. Abiotic component है wind, temperature, light, water. These are the abiotic component. But whatever the living things are present in our ecosystem, in an environment, that is called the biotic component. So you have to understand better कि जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, दीज आर कॉल्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स. और बायोटिक कंपोनेंट्स में जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आइदर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आइदर द big organisms, bigger organisms, either the human beings, either the animals, all are called the biotic
component. But whatever the physical factors like temperature, rainfall, wind, soil, minerals, these are called abiotic components. So these are the one important things that we have studied. There are two types of components. And what is ecosystem? अगर ecosystem की definitions अगर हम जानना चाहेंगे, तो ecosystem एक system है by which we can interact, by which living organisms of an area, of a particular area, interact with the living organisms of a particular area interact with the environmental factors, the physical factors of the environment, like wind, water, temperature, and that is called ecosystem. So biotic, abiotic जो है, combined together they are called ecosystem. बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट को अगर टुगेदर हम मिला दें किसी पार्टिकुलर एरिया के, तो उसे उस एरिया का इकोसिस्टम कहा जाता है. इकोसिस्टम में बी ऑफ टू टाइप्स, वन में बी नेचुरल एंड वन में बी आर्टिफिशियल. नेचुरल क्या होता है? जो जिसमें मैन मेड नहीं हो, जो नेचुरल हो, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो, पॉन्ड इकोसिस्टम हो, इसमें मैन मेड का कुछ नहीं करना है. बट अगर हम कहें कि कुछ ऐसे चीज इकोसिस्टम होते हैं जिसको मैन की इंटरफेरेंस के द्वारा बनाया गया हो, तो उसको हम लोग मैन मेड इकोसिस्टम भी कहते हैं. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स वी हैव टू स्टडी हियर. Other types of ecosystems are forest, ponds and lakes. These are natural ecosystems. लेकिन गार्डन और क्रॉप फील्ड्स की बात अगर हम करें, जो क्रॉप में अगर कोई किसान क्रॉप डेवलप कर रहे हैं, किसी फील्ड में कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो वो क्रॉप फील्ड्स है. या कोई गार्डन को हम डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें ह्यूमन मेड एंड दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. इसी तरह से अगर एक्वेटिक की बात करें, तो एक्वेरियम अगर हम जहाँ डेवलप करते हैं, यू हैव सीन द एक्वेरियम ऑल्सो इन योर होम और इन योर ऑफिसेज एट डिफरेंट प्लेसेज विच आर वेरी वेल डेकोरेटेड. एंड डेकोरेटेड क्या, उसमें एक लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं और एक उसमें प्रॉपर लाइट और टेम्परेचर भी दिया जाता है. आप देखे होंगे किसी भी एक्वेरियम में उसमें लाइटिंग की व्यवस्था होती है, उसके जो फिश होते हैं उसमें फूड की व्यवस्था की जाती है. तो ये कंस्टिट्यूट कर रहा है, तो एक्वेरियम भी एक मैन मेड इकोसिस्टम कहला सकता है. और गार्डन्स और क्रॉप फील्ड्स को भी आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में हम रख सकते हैं. तो दो चीजें हम पढ़ना है, एक कंपोनेंट पढ़ना है और दूसरा टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ने हैं. टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आपको हो जाएंगे, एक नेचुरल इकोसिस्टम हो गए और एक हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. तो यू कैन क्लासिफाइड विद द एग्जाम्पल्स, डिफरेंट एग्जाम्पल्स यू कैन राइट योर सेल्फ. खुद से भी आप लिख सकते हो. आई हैव अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट लाइन्स. ओके, यू कैन सी इन एक्टिविटी. एक्वेरियम देखना है, किस तरह से एक्वेरियम में फूड वगैरह दिया जाता है, वाटर, ऑक्सीजन, फूड डाला जाता है, और उस तरह से फिर वहाँ पे फिश जो है अलाइव आराम से रहते हैं. तो उसको हम लोग एक मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में रखा जाता है. नाउ वी हैव टू रीड कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स दैट अफेक्ट द बायोटिक. जैसे बायोटिक कंपोनेंट की बात अगर हम लोग कहते हैं, तो वो बायोटिक कंपोनेंट को फिर कितने कैटेगरी में बांटा जा सकता है. Producers, consumers, or decomposers. All are livings, but all the living organisms of the biotic component have been divided into different categories: producers, consumers, and decomposers. So this is very important for you to understand कि कौन कौन से कैटेगरी में बायोटिक कंपोनेंट को रखा गया है. तो देयर आर थ्री कैटेगरीज that you have seen. Producers, consumers, and decomposers. So in this chapter we have to see that which organisms can make organic compounds like sugar and starch from inorganic substances using the radiant energy of sun in the presence of chlorophyll. अगर हम प्रोड्यूसर्स की बात करें, तो प्रोड्यूसर्स हम जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो भी ग्रीन प्लांट्स होंगे हमारे इस प्लैनेट अर्थ पे, तो वो ग्रीन प्लांट्स जिसमें क्या है, क्लोरोफिल मौजूद है, दे आर कॉल्ड द producers. Whether they may be herb, shrub or trees, वो small size के हो या big size के हो, if they have in on their leaves the chlorophyll and they are able to produce the food
they are able to produce the sugar, they are able to produce the starch, they can convert the solar energy into chemical energy, they will be called producers. When the solar energy is also called radiant energy. In your book it is written radiant energy. So because radiation है radiant energy, and it is converted into chemical energy by the process of photosynthesis. So such plants are called autotrophs and they are called the producers. You can see here and now read the sentence also and you will understand the organisms which consume the food produced. They are directly from producers or indirectly by feeding on other consumers are the consumer. Consumer can be classified again herbivores, carnivores, omnivores and parasites. तो ये बात अगर हमारी हो गई प्रोड्यूसर्स की, फिर हम लोग कंज्यूमर्स पे आ जाएंगे। तो कंज्यूमर्स में क्या होता है, कंज्यूमर्स भी कई कैटेगरी के होंगे। वन विल बी कंज्यूमर्स को फिर हम क्लासिफाई करेंगे हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स एंड पैरासाइट्स और प्रीडेटर्स वी कैन से। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इकोसिस्टम में सबसे पहले हमें देखना होता है सोर्स ऑफ एनर्जी कहाँ से आ रहा है। द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ इज ओनली द सन। इस अर्थ पे only source of energy is the sun, the solar energy. इसी एनर्जी को हम सिर्फ चेंज कर सकते हैं। एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed. Energy can only be changed from one form to another form. Like this is solar energy, then the green plants are absorbing this solar energy and converting it in the form of chemical energy. That chemical energy is stored in plants in different forms which we eat, and we find energy, solar energy, through the plants, through the green plants. So these green plants are called autotrophs. इस green plants को हम लोग autotrophs कहते हैं, और autotrophs को कहने के कारण ही इसे प्रोड्यूसर्स के रैंक में रखा गया, प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में रखी गई। अब ऑटोट्रॉप्स जितने प्रोड्यूसर्स हैं, उस प्रोड्यूसर्स को सबसे पहले जो एनिमल्स खाएंगे, जो एनिमल्स उसको कंज्यूम करेंगे, उसको हर्बीवोर्स कहेंगे। उस हर्बीवोर्स को जो एनिमल्स कंज्यूम करेंगे उसे कार्निवोर्स कहते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ओमनिवोर्स होते हैं, जो दोनों यूज करते हैं, हर्बीवोर्स भी करते हैं और कार्निवोर्स, ह्यूमन बींग्स हैं, फ्लेश भी खाते हैं, वेजिटेबल्स भी खाते हैं। फिर पैरासाइट होते हैं जो उसके बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं आफ्टर डेथ एंड डिके ऑफ द ऑर्गेनिक बॉडी, आफ्टर डेथ एंड डिके ऑफ द लिविंग बॉडी। दी organisms like parasites decompose, microorganisms, they decompose the dead and decaying substances. So we have to give the examples for each categories. लाइक इन एक्वेरियम की बात अगर करते हैं, आपके बुक में जैसा दिया हुआ है, हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाइज। कभी आपने सोचा है जब कोई ऑर्गेनिज्म मरते हैं या डाई होते हैं तो उसके बाद क्या होता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ा है लाइक बैक्टीरिया, फंगी, ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोड्यूस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। तो उसको डेड रिमेन्स को ब्रेक डाउन करते हैं। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर द डिकम्पोजर्स as they break down the complex organic substances into simple inorganic substances. तो complex organic substances जिससे बॉडी बनी हुई है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उसको वो सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन करते हैं और वापस उसको सॉइल में मिक्सअप हो जाता है। आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ द बॉडी दे गो इनटू द सॉइल और अगेन दे आर यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड दे इंक्रीज द फर्टिलिटी। मीन्स कि अगर आपको देखिए, अगर कोई एनिमल्स हो आफ्टर द डेथ एंड डिके ऑफ द और लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, तो उसकी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज बॉडी की है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज जो बॉडी में बनी हुई है, दे आर कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म।
और सिंपलर फॉर्म में जब होता है तो फिर उसके बाद कहाँ चला जाता है, वो सॉइल में जाता है। तो ये सारा काम कर कौन रहा है, दे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, सो दे आर कॉल्ड आवर फ्रेंड्स ऑल्सो, दे आर नॉट ओनली enemy. Microorganisms are not only enemy, they are our friends also, they help in cleaning the environment, they they are called scavengers also. तो what will happen to the garbage and dead animals plants, अगर नहीं, अगर वैसे रहेंगे तो क्या हो जाएगा। तो natural replenishment of the soil will take place even if decomposers are not there. Again we have to study, this is the food chain। ये food chain क्या है, what is the food chain। फूड चेन्स और वेव्स क्या पढ़ना है इसमें, फूड चेन्स और फूड वेव्स क्या होता है। फूड चेन्स ये होता है जब एक सीरीज में फूड को खाया जा रहा है, वन ऑर्गेनिज्म इज इटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म, पहला प्लांट्स, प्लांट्स ने फूड बनाया, समझ गए, plants is eaten by some herbivorous organisms and that is fixed, herbivorous organism is eaten by some another organism, they are eaten by third organism। तो इस तरह से जब सीरीज में होता है, लाइनियर होता है, इनका जो फूड चेन जो होते हैं वो लाइनियर होते हैं। लेकिन फूड वेव क्या होते हैं, वो एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है जिसमें कि एक एनिमल्स को दो दो ऑर्गेनिजम्स उसको कंज्यूम कर सकते हो। तो इस तरह से उसमें फूड वेव एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। वेव का मतलब ही होता है जाल, फूड वेव। और यहाँ चेन है, चेन का मतलब होता है लाइनियर होना, मतलब कि एक सीरीज में उसे उसको कंज्यूम किया जा रहा है, तो उसको फूड चेन्स कहते हैं। और जब इस तरह की स्ट्रक्चर जाल जैसी, वेव जैसी, नेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको फूड वेव भी कहते हैं। तो what are the organisms which are taking part in the food chain, here you can see the food chain in nature। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो यहाँ देखो ग्रीन प्लांट्स है, green plants are eaten by the deer and they are eaten by the tiger, this is one food chain। ये एक फूड चेन है। दूसरा फूड चेन आप इसको देख लीजिए, इस फूड चेन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि these are the small plants eaten by the grasshoppers and that is eaten by the frog, the frog is eaten by the snakes and that snakes are eaten by the hawk। तो ये भी एक फूड चेन है। तो यहाँ पर डिफरेंट इकोसिस्टम है, दिस इज कॉल्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम, दिस इज कॉल्ड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अगर पॉन्ड इकोसिस्टम की बात आप हम करेंगे तो पॉन्ड इकोसिस्टम में आप क्या देख रहे हैं, पॉन्ड, पॉन्ड में जो हाइड्रिला का प्लांट होता है, ये पॉन्ड अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, सपोज कीजिए पॉन्ड है और ये हाइड्रिला है, हाइड्रिला प्लांट होते हैं, वो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो पॉन्ड्स के बॉटम पे पाए जाते हैं और वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन द वाटर and here the small fish and big fish are also found, these small fish and big fish are the consumers। here you can see phytoplankton and zooplankton, plants को खाने वाले जो छोटे इंसेक्ट्स आप देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फाइटोप्लैंक्टन। जो फाइटोन मीन्स प्लांट्स को जो ईट करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन्स को जो स्मॉल फिश खाते हैं, फिर इसको हम लोग जू प्लैंक्टन्स भी कहते हैं। और जू प्लैंक्टन्स को फिर स्मॉल फिश, और स्मॉल फिश को फिर आप देख रहे हो ये डक और क्रेन, ये सब जो ऑर्गेनिज्म, जो पॉन्ड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पर पाए जाते हैं, वो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कि ये भी एक सीरीज बन रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द फूड चेन। So you can understand what is grassland ecosystem, forest ecosystem, grassland ecosystem and pond ecosystem। Here you can find that how energy level is transferred from one series to another series। और हर सीरीज को, एक स्टेप्स को हम लोग ट्रॉफिक लेवल भी कहते हैं। तो each step और लेवल ऑफ द फूड चेन फॉर्म्स ए ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है, व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल, ईच स्टेप, हर स्टेप पर जहां पर भी एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड ए ट्रॉफिक लेवल। तो प्रोड्यूसर्स भी अगर ट्रॉफिक लेवल है तो दूसरा ट्रॉफिक लेवल कंज्यूमर्स का होगा। फिर कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स होंगे, कार्निवोर्स होंगे। तो ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज दे आर converting the solar energy to chemical energy, they fix up the solar energy and make it available for heterotrophs or the consumers। you can understand it better how the energy is converted from one form to another and again energy is transferred from one trophic level to another trophic level। later on we shall understand what percentage of energy is transferred from one step to
अनदर स्टेप, एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाने में कितनी एनर्जी ट्रांसफर की जा सकती है, इसकी भी एक रूल्स है। हम आगे पढ़ेंगे। फिर हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स कम एट द सेकेंड, स्मॉल कर्निवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स एट द थर्ड एंड लार्जर कर्निवोर्स और द टर्सरी कंज्यूमर्स फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। तो इस तरह से 4 ट्रॉफिक लेवल आपके बुक में बन रहा है, जो आपको बुक में पिरामिड की स्ट्रक्चर बनाई गई है, इसलिए ऐसा बनाया गया है। दिस इज कॉल्ड अपराइट पिरामिड, इसे हम लोग अपराइट पिरामिड कहते हैं, जब पिरामिड सीधे आकार का होता है। और समटाइम्स वी शैल फाइंड इस टाइप के पिरामिड भी हमें मिलेंगे, जिसमें कि प्रोड्यूसर्स की संख्या बहुत कम होगी और कंज्यूमर्स ज्यादा होंगे। ये प्रोड्यूसर्स होंगे और कंज्यूमर्स ऑफ वन लेवल, कंज्यूमर्स ऑफ टू लेवल, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर्स, तो इसकी संख्या ज्यादा होगी। ये कहाँ मिलेगा हमें? ये मिलेगा जब हम लोग पढ़ेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम की बात करेंगे, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लेकिन ये अगर देख रहे हैं कि सिंपल प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, तो ईच लेवल इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल। हर एक लेवल को ही ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो ट्रॉफिक लेवल क्या है? व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? दिस इज द एवरी स्टेप इन द दैट दैट फॉर्म्स द इकोसिस्टम। जहां पे हम लोग अभी ने पढ़ा था ना, ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन, ईच स्टेप और लेवल ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड द ट्रॉफिक लेवल। And trophic level consists of 4 components. We can say producers, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumers, we can say decomposers also. And you can see there are different important part is that here एक और important बात आ रही है कि 10% of food, 10% of the food eaten is turned into its own body and made available to the next level. जितना भी एनर्जी प्लांट अगर जितना सोलर एनर्जी ले रहे होंगे, तो उसके 10% को ही एब्जॉर्ब करेंगे और 10% फिर वापस देंगे। ये जितना एब्जॉर्ब किए, जितना यूज किए, तो ये जो देंगे प्लांट्स एक लेवल को, उसको वही 10%, ओनली 10% ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड। दिस इज कॉल्ड लिंडेमैन्स 10% लॉ। So these are the important topic that you have to study properly. इस बुक को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक से आपके सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी की बुक से ही पूछे जाएंगे बोर्ड में। आप बहुत इधर उधर की बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पहले आप इसको पढ़ लें, फिर आपको जरूर दूसरे बुक से आप पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले आप एनसीईआरटी की बुक को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। तो इसमें बस कंक्लूडिंग यही पढ़ना है कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। आप देख रहे हैं ना, सोलर एनर्जी जो है यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे, और सोलर एनर्जी ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। एंड ऑटोट्रॉप्स की एनर्जी फिर हेट्रोट्रॉप्स में जाती है और फिर डिकम्पोजर्स में जाती है। सोर्स ऑफ एनर्जी में अगर केवल बात करें तो केवल सोलर लाइट, सन जो है, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ अर्थ। और फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के सारे कंपोनेंट से उसे गुजरना है। These are the different sources, different topics that have been discussed and you will write, you will read it। जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपके बुक में लिखी हुई है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बोला है इन सारी बातों को लिखा गया है। लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी वेरी करेक्टली, each organism generally eaten by 2 or more other kind of organisms which in turn are eaten by several other organisms. So instead of a straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching lines called a food web. This is for food web। अगर आपके पास नो फूड वेब का आता है तो आप ये टॉपिक को लिख सकते हो, ठीक है। सो लिटिल एनर्जी डेवलप फॉर नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर्स। आपने ये बात भी जान गया कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस इज द फूड वेब। स्ट्रक्चर देख रहे हो फूड वेब की आप? फूड वेब है कंसिस्टिंग ऑफ मेनी फूड चेन्स, कई फूड चेन्स हैं इसमें, कोई भी किसी को भी कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे ये ग्रीन प्लांट्स अगर हैं, ग्रीन प्लांट्स को एक ऑर्गेनिज्म में इसको कंज्यूम किया, फिर उसे ग्रीन वो फिश ने कंज्यूम किया, पॉन्ड इकोसिस्टम की बात हो रही है, तो फिर फिश तो कंज्यूम किया जा सकता है दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी। ये जो इंसेक्ट है ये फ्रॉग के द्वारा भी कंज्यूम किए जा सकते थे। ग्रीन प्लांट्स यहाँ पे आप देखिए, ये ग्रीन प्लांट्स हैं, तो ये जब एक ही चीज ग्रीन प्लांट्स को एक छोटा रैट माइस ले रहे हैं, यहाँ पर भी है फाइटोप्लैंक्टन्स, रैबिट खा रहे हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। तो ऑल इकोसिस्टम्स आर कंबाइंड टुगेदर एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स आर
able to use another organism or consume another organism and forming a network like structure. This is called the food web, not a chain. तो food chain और food web में differences होती है, इस चीज को आपको पढ़ना है अच्छे से। तो आप देख रहे हो सनलाइट प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स। टॉप कार्निवोर्स कहते हैं लाइक हॉक, progressively. It is no longer secondary available to the previous level. The energy available at each trophic level gets diminished progressively due to loss of energy. After interesting aspect of food chain is how unknowingly some harmful chemicals enter our bodies through the food. You have read in chapter 9 how water gets polluted. तो अदर केमिकल्स टू सेवरल पेस्टिसाइड्स है, वो भी हमारे बॉडी में जा सकता है टू प्रोटेक्ट आवर क्रॉप्स फ्रॉम डिजीज, क्योंकि फार्मर्स यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स को डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए। या किसी कीड़ा, पेस्टिसाइड कहते हैं जब इंसेक्ट लग जाता है किसी प्लांट्स में तो उसको सेव करने के लिए कुछ केमिकल्स डाला जाता है, तो उसी को पेस्टिसाइड्स कहते हैं। बट दे पॉल्यूट द क्रॉप ऑल्सो, उससे क्रॉप भी तो पॉल्यूट हो रहा है। दीज केमिकल्स आर आइदर वॉश डाउन इनटू सॉइल or into the water bodies from the soil. These are absorbed by plants, और फिर वहां से क्या है, वो plants उसको absorb कर लेगा। अगर soil में chemicals आ चुका है तो वो chemicals absorb हो जाएगा green plants के द्वारा, फिर वहां हम लोग जो food खाएंगे उसमें भी मिलेगा। They are taken up by aquatic plants also, they are taken up by aquatic animals also, and this is one of the ways in which they enter the food chain, so they are not degradable. These get accumulated at trophic level. As human beings occupy the top level in food chain, हर food chain में human beings जो है वो top level पे है, because they are omnivores. The maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies. So this phenomenon is called biological magnification. It is very important to learn. Biological magnification भी बहुत important term है आपके लिए। Why food grains such as wheat and rice, vegetables, जो भी फूड हम लोग खाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स रह जाते हैं, तो दे कांट बी यूज्ड विदाउट वॉशिंग। ऑलवेज यू सी दैट योर मदर इज वॉशिंग द वेजिटेबल्स वेरी वेल। ऑलवेज दे से दैट वॉश द फ्रूट्स बिफोर ईटिंग, बिकॉज there should be no remnants of the pesticides. So these are the different things that we have studied. What are trophic level, and give an example of a food chain. State the different trophic levels. What is the role of decomposers? Decomposers decompose the dead complex organic substances and convert into simple organic substances, and which are then uh, mixed into the soil, and then it is again taken up by the plants. तो डिकम्पोजर्स का ये रोल है। वो दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स ऑल्सो बिकॉज दे क्लीन द एनवायरमेंट ऑल्सो, सो दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। हाउ डू आवर एक्टिविटीज अफेक्ट द एनवायरमेंट, कि हम लोग की एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज है जो एनवायरमेंट को अफेक्ट करती है। अब ओजोन लेयर क्या है? ओजोन, ओजोन हमारे यहाँ स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में पाया जाने वाला एक ऐसा गैस है, स्ट्रेटोस्फेयर, ओजोन लेयर, जो हमारे हमारे अर्थ को, ozone layer, they protect our earth. But what happens and how are they being harmful? तो ऑक्सीजन जो है, हमेशा आप देखेंगे दो एटम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टू एटम्स के होते हैं। तो ये जो है ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर देख रहे हैं अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा ये O प्लस O अलग अलग एटम में बट गए हैं। बट वन एटम जो है ये बहुत ही रिएक्टिव, ये तुरंत दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाता है। यहाँ देख रहे हो सिंगल O और ये O2, जो O2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उससे ये जो ऑक्सीजन है इसे हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। नेसेंट ऑक्सीजन, सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन, and it combines with one molecule of oxygen and forms O3, ओजोन। और ओजोन इतना ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए, जो भी अल्ट्रा वायलेट रेज आते हैं सन से, सन के जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट कौन करता है? ओजोन करता है। अब होता क्या है, जो CFCs है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CCl4, टेट्रामीथेन कार्बन होते हैं, फिर और भी सारे गैसेज हैं। तो वो जो गैसेज हैं, इन सब गैस से जब ब्रेक डाउन होती है तो ये बहुत ही स्टेबल होते हैं।
व्हेन दे गो अपवर्ड्स दे रिलीज द क्लोरीन गैस, और ये क्लोरीन गैस ही ऑक्सीजन ओजोन लेयर को इफेक्ट करती है। ये क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन गैस ये ओजोन लेयर को हार्म पहुंचाती है, और इस हार्म पहुंचाने के कारण ही ओजोन लेयर में क्या होता है, डेप्लीशन होता है, डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर में होल्स हो रहे हैं, जिससे कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा, और अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्शन अगर नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी में बहुत सारे डिजीज होंगे, स्किन डिजीज होंगे, कैंसर्स होंगे। तो इसकी जो सबसे पहले ये आप पढ़ेंगे यूएनईपी, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक एग्रीमेंट हुआ था यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, यहाँ पे एक एग्रीमेंट आया था कि सीएफसी प्रोडक्शन को रोकना है एट 1986 लेवल्स, और ये मैंडेटरी है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कि जो रेफ्रिजरेटर्स बनाते हैं उसी में ये सीएफसी यूज किया जाता है। सीएफसी का यूज जो होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर में भी हो सकता है, और आपको रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। तो इसकी एक एग्रीमेंट्स बनी थी कि रेफ्रिजरेटर्स जो भी बनेंगे वो सीएफसी फ्री बनेंगे, बिकॉज सीएफसी गैस इज वेरी हार्मफुल एंड दे आर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सो इट मस्ट बी सीएफसी फ्री रेफ्रिजरेटर बनना है वर्ल्ड में। तो इसकी एक मीटिंग हुई थी यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और अमाउंट ऑफ ओजोन जो है ये ड्रॉप कब से कर रहा है ज़्यादा, 1980 से हो रहा है, जिसे क्यों किसके कारण हो रहा है, तो सीएफसी के कारण हो रहे हैं, कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है सीएफसी। मैनेजिंग द गार्बेज, और गार्बेज को फिर मैनेज करना है हम लोगों को, कि गार्बेज को प्रॉपर मैनेज करना है। बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हर जगह देखा जाता है आजकल, ग्रीन और नॉन ग्रीन, बायो सॉरी सॉरी बायोडिग्रेडेबल, ऐसे सब्सटेंस यूज करें जो बायोडिग्रेडेबल हो, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वे हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही हार्म पहुंचाते हैं। दे आर लॉन्ग लास्टिंग, बहुत लास्ट नहीं होते हैं, उस पर कोई ऑर्गेनिजम्स भी अफेक्ट नहीं कर पाते हैं। उस पर सैप्रोफाइट्स जो होते हैं उनका कोई बैक्टीरिया का एक्शन इस पे नहीं हो सकता है। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस में बैक्टीरिया का एक्शन होता है एंड वापस से जो है वो सॉइल में मिल जाते हैं, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं वो सॉइल में मिक्सअप नहीं हो सकते हैं, तो दे डैमेज द इन्वायरमेंट। तो जब हीट होता है, प्रेशर होता है इस तरह से, तो दे परसिस्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ऐसे जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हैं दे आर सेड टू बी बाय ऐसे सब्सटेंस, दिस इज इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन फॉर यू, इसको आप सर्कल कर लीजिए। Substances that are broken down by biological processes are called biodegradable substances, and that substances which are not broken down in this manner, they are said to be non-biodegradable substances. Okay, non-biodegradable substances may be inert, simply persist in environment for a long time, and they harm the various members of the ecosystem. So this is the thing that you have to study. डिस्पोजेबल कप इन ट्रेंड्स, आजकल देख रहे हो ना, कुल्हड़ वाली चाय चलती है, सब लोग, बच्चे लोग को मिट्टी के बर्तन की आदत होनी चाहिए, उसमें पीने से कुल्हड़स देख रहे हैं, सम टाइम बैक कुल्हड़स की बात आ रही है आपके बुक में। तो कुल्हड़स में अगर पियेंगे तो वो मिट्टी के कप हैं, और मिट्टी के कप वापस फिर मिट्टी में मिल जाएंगे। तो देयर विल बी, दिस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज, दे डोंट हार्म द एनवायरनमेंट। तो these are the important things that we have studied in this chapter, and there are so many things that activity में बहुत सारे होते हैं जिसको आप कर सकते हैं। There are so many activities given, you can do these things। अब जैसे ये क्वेश्चंस है, टू स्टडी द ओजोन लेयर डेप्लीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम थोड़ा देखना चाह रहे थे, आप इसको पढ़िए। टू स्टडी द ओजोन लेयर डेप्लीशन, ठीक है। Ozone layer depletion is like, has you can see there are 1 2 3 4 5 types given here। तो आपका पूछा जा रहा है, fill in the bubbles with the correct statement, heading of the bubbles, information can be collected from library newspapers। तो formation of ozone, ozone का formation कैसे होता है,
एंड द सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन है ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेज क्या क्या है, तो आप जान ही रहे हो सीएफसी गैस की नाम आप दे सकते हो। सीएफसी गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन डेप्लीटिंग सब्सटेंसेज है। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कहाँ से होता है, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। वेयर इट इज फाउंड, स्ट्रेटोस्फेयर। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन कैसे होता है, तो ओजोन में आप अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा किस तरह से ओजोन O2 जो है, दे when two atoms of oxygen are separated and one single atom of oxygen has a tendency fast to join the one molecule of oxygen and forming there are three molecules of oxygen together, that is called ozone. इसी को ओजोन कहते हैं and it has a special capacity to protect our earth from the ultraviolet rays. तो इसकी वेयर इट इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फेयर। बट व्हाट इज ओजोन, ओजोन है क्या, ओजोन भी एक ट्रिपल कंपाउंड ऑक्सीजन है। हियर दे ऑक्सीजन आंसर दिया हुआ है कि कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं जो ओजोन को इफेक्ट करते हैं, तो दीज आर सी एफ सीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोजेंस, नाइट्रस ऑक्साइड, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड CH4 और मीथेन गैस। तो ये 1 2 3 4 5 5 नाम हमने दिया है, आप इसको याद रखोगे। एटॉमिक ऑक्सीजन बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, जो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना देते हैं, इसको एटॉमिक ऑक्सीजन कर रहे हैं। जो अलग अलग एटम में जब ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन, तो ये जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से ज्वाइन करते हैं तो एक ओजोन गैस बना रहे हैं। ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है। ओजोन इज ए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 3 एटम ऑक्सीजन से बना हुआ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है और ये हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। कैंसर्स, म्यूटेशंस, इफेक्ट ऑन आई साइट। तो यू कैन सी द क्वेश्चंस हियर। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है, जिस क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, दिस इज द क्वेश्चन वेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट ओजोन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड बीइंग द एनवायरमेंट अवेयरनेस, फॉर एनवायरमेंट अवेयरनेस ऑल्सो यू मस्ट नो दीज थिंग्स। तो इसलिए क्लास 10th की जो सिलेबस होती है बच्चों को, वो ओवरऑल सारी तरह की जानकारी आपको मिलती है, तो यू हैव टू रीड इट प्रॉपरली। तो इस चैप्टर को आप पढ़ लें, इस क्वेश्चंस को। इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डेप्लीशन क्या है, कैंसर है, स्किन कैंसर हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन काउज म्यूटेशंस, आई साइट को डैमेज किया जा सकता, आई साइट भी डैमेज हो सकता है। आई साइट। व्हाट इज ओजोन, ओजोन इज ए ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कि 3 एटम्स के जो ऑक्सीजन एक जब जमा हो रहे हैं तो इसको ट्राई एटॉमिक कहते हैं। और where it is found and they has the capacity to protect us from ultraviolet rays of the sun. Okay, so this is very important questions. There are so many questions and that helps you. If you need further information, then you can tell me, you can write in comment. Thanks for watching. If you like it, you must share and subscribe the topic we have discussed today, the topic environment. This is very important topic. So if you like it, like, share and subscribe. You will find very useful videos on this channel for all students of standard 10, 11, 12. I am preparing the videos of biology, related to biology topic mainly for this on this channel, and it will be very useful for all the students. Okay, thank you, thank you, thank you very much. Thank you for watching. Thanks a lot.